Hello students, so let's start the last chapter of Indian economy. The name of the chapter is Comparative Development Experiences of India and its Neighbor. From the very first paragraph it is written, the economy of the world is classified into two parts. One is developed, another is developing economy. Means there are some countries which are very developed and some countries are developing. Now, after Cold World War, all the nations are trying to strengthen their domestic economy, and to make their economy strong they start making regional and global economic groups such as SHARC, European Union, ASEAN, G8, G20, ब्रिक्स etc. अंडरस्टूड. यानी शीत युद्ध के बाद सभी देश अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के, इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करने लगा. इसके लिए वो आसपास रीजनल देशों के साथ या फिर ग्लोबली जो लोग स्ट्रॉन्ग देश है उनके साथ ग्रुप बनाने लगा. कुछ ग्रुप्स के यहाँ पे नाम है. एक रेफरेंस में यहाँ पे दिया है, कोल्ड वार जो चला था वो 1947 टू 1991 चला था. इस वक्त दो मेन ग्रुप था सुपर पावर यू कैन से. वन इज यूएसए एंड इट नेटो अलाइज, अनदर इज सोवियत यूनियन. ओके, सो मोस्टली countries are making group with these two superpower after Cold World War. Now, since till now we have studied about the Indian economy, so we have to study the India and its neighbor, how strong the neighbor is. Mostly we will take only three country: India in comparison with China and Pakistan. India, China and Pakistan. We will compare only with two principal neighbor, that is China and Pakistan. Understood? Now, one by one we will continue. See, one very first thing it is written over here, China. China has recently moving toward more liberal, restructuring its command economy. You have to understand this sentence. China अब अपने आप को liberal कर रही है. Liberal means चाइना इज ट्राइंग टू ओपनिंग अप हिज इकोनॉमी. याद रखिए चाइना बहुत सालों तक, काफ़ी सालों तक वो क्लोज्ड इकोनॉमी रहा, बट नाउ ही इज इट्स ट्राइंग टू लिबरलाइज इट्स इकोनॉमी of its command economy. Command means still there is one party rule, still all the decisions are taken by the government, there is no free play of market. Now come to next is Pakistan. Pakistan has an authoritarian militarist political power structure. Authoritarian means somebody having authority power. It can be a military also. Many times we have seen that Pakistan is ruled by the military. Clear? Now, and India we all know it's a democratic republic country. So from last, you can see over here, last 6 decades these three countries are moving on the path of development. 6 decade मतलब 60 सालों से ये तीनों देश डेवलपमेंट के पाथ पे चल रहा है. सो वी विल वन बाय वन वी विल अंडरस्टैंड और कंपेयर देयर डेवलपमेंटल पाथ. अब हम लोग धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं. राइट फ्रॉम द फर्स्ट डेवलपमेंट पाथ. फर्स्ट, द वेरी फर्स्ट पॉइंट, सी तीनों ने डेवलपमेंटल पाथ एक साथ स्टार्ट किया. इंडिया एंड पाकिस्तान 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ एंड चाइना गॉट इंडिपेंडेंस इन 1945. China is officially known as People's Republic of China. These three countries has announced its 5-year plan somehow near. See, first 5-year plan was in India, it was announced in 1951, Pakistan 1956 and in China 1953. Clear? Means they are same few year lack in announcing their 5-year plan. Again, India and Pakistan adopted similar strategy of large public sector. मीन्स इंडिया और पाकिस्तान ने सबसे देश का आज़ादी होने के बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सबसे ज़्यादा फोकस किस पे किया? पब्लिक सेक्टर पे. मीन्स इंडस्ट्री आर मेड ऑन पब्लिक सेक्टर, वॉट एवर डिसीजन आर टेकन बाय द गवर्नमेंट ओनली. मतलब पब्लिक सेक्टर डोमिनेट कर रहा था इंडिया और पाकिस्तान में. क्लियर? नेक्स्ट, टिल 1980 ऑल द थ्री कंट्रीज हैव सिमिलर ग्रोथ एंड पर कैपिटा इनकम. ये आपको याद रखना, 1980 तक तीनों कंट्री का ग्रोथ और पर कैपिटा इनकम ऑलमोस्ट क्या था? सिमिलर. लेकिन उसके बाद क्या ऐसा होता है, बट बिफोर इट वॉज कंपेरेटिव, लेट अस फर्स्ट एनालाइज द स्ट्रक्चर.
अब हम लोग पढ़ेंगे धीरे धीरे कि क्या ऐसा कंडीशन आया जिससे एक इकोनॉमी इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो गया और एक इकोनॉमी पूरी तरह से डाउनफॉल में चला गया। वन बाय वन विल स्टडी, राइट, स्टार्ट फ्रॉम चाइना। चाइना के बारे में हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? चाइना इज़ द वर्ल्ड ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन एंड इट इज़ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड। और क्या जानते हैं? वन मोर थिंग वी नो दैट इज ग्रोथ रेट इज GDP growth rate, I am saying, and growth rate, population is 1371 millions, mean largest population, and the population growth rate is only 0.5%. we will discuss it later on. यानी पॉपुलेशन इतना ज़्यादा होते हुए भी ग्रोथ रेट पॉपुलेशन का बहुत कम है। चलो मैं बता देता हूँ, ड्यू टू वन चाइल्ड पॉलिसी, ये ग्रोथ रेट इतना कम पहले नहीं था, लेकिन ये 0.5 पे तब आ गया ड्यू टू वन चाइल्ड पॉलिसी। और चाइना का लैंग्वेज वी ऑल नो दैट इट्स मैंडरिन चाइनीज़। चाइना थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है इन एरिया आफ्टर रशिया एंड कैनेडा। नाउ कम टू नेक्स्ट, चाइना के बारे में कुछ रिफॉर्म्स पढ़ेंगे। चाइना में बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए। एज वी ऑल नो दैट चाइना में क्या होता है, वन पार्टी रूल चलता है और दैट नेम ऑफ द पार्टी इज़ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। वहीं पर लीडर चेंज होते रहता है। वी ऑल नो दैट प्रेजेंट जो भी लीडर है, प्रेसिडेंट ऑफ चाइना है, प्राइम जो भी है, जिनपिंग, ही इज़ बिलोंगिंग फ्रॉम communist party. There is only one party, there is no opposition party. Now there are some sorts of campaign or reform has been changed, takes place earlier in China. The name of the reform you have to remember, Great Leap Forward campaign. This is very important campaign which has been take place in China. कब हुआ था ये हुआ था 1958 में। किसने किया था? माओ ने। इसका मकसद क्या था ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन का? ताकि चाइना जो मोस्टली निर्भर था खेती पर, उसे मॉडर्न इकोनॉमी कर सके। कैसे? थ्रू रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन करके। यानी लोगों को प्रेरित किया गया, प्रोवोक किया गया कि वो लोग खेती ना करके इंडस्ट्री के तरफ आए। उन्हें कहा गया कि अपने खेतों में यानी अपने बैकयार्ड में क्या करिए, इंडस्ट्री लगाइए, ठीक है, ताकि वहाँ की इकोनॉमी क्या हो सके, मॉडर्न हो सके। फर्स्ट। सेकंड पॉइंट, उसी वक्त ग्रेट लीप फॉरवर्ड, ड्यूरिंग ग्रेट लीप फॉरवर्ड देयर इज अ कम्यून सिस्टम हैज़ बीन स्टार्टेड। व्हाट इज कम्यून सिस्टम? एक्चुअली पीपल्स आर कलेक्टिवली कल्टिवेटेड देयर लैंड, यानी पीपल आर टोल्ड टू कल्टिवेट देयर लैंड कलेक्टिवली, एक साथ खेती करेंगे, अलग अलग नहीं, एक साथ। इन 1958 तक 26,000 कम्यून सिस्टम चाइना में तैयार हो चुका था, और जो कि चाइना के जितना खेती है सबको कवर कर, मतलब नो बडी इज देयर इन द चाइना एट दैट टाइम हु इंडिविजुअली डू द फार्मिंग, दे आर डूइंग फार्मिंग कलेक्टिवली एंड नोन एज कम्यून सिस्टम। जब ये कैंपेन चल रहा था, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आया था, बहुत बड़ा सूखा पड़ा था चाइना में, जिससे चाइना में 30 मिलियन लोग मरे थे भूखमरी से। ये मैं बता दूं क्या मैटर हुआ था, चूँकि लोग खेती कम करने लगे थे, इंडस्ट्री की तरफ गए थे, खाने के चीज़ की शॉर्टेज पड़ गई थी, अनाज फूड क्रॉप की बहुत शॉर्टेज पड़ गया था। तो लोग उसी वक्त लोगों को सरकार ने कहा था, सरकार हैज़ गिवन परमिशन टू द पीपल टू दैट दे कैन ईट वाइल्ड एनिमल, मतलब जंगली चीज़ों को भी खा सकता है। और उसी वक्त से चाइना में वेट मार्केट स्टार्ट हो गया, मतलब जंगल से जानवरों को या पक्षियों को मार के खाना, सांप बिच्छू को खाना, क्योंकि उस वक्त खेती बहुत कम कर दिया गया था। ये इसका एक नुकसान था। खेती कम होने की वजह से बहुत बड़ा सूखा पड़ा था, जिसकी वजह से महामारी फैला था। खाने के लिए अनाज नहीं होने की वजह से 30 मिलियन लोग मरे थे। क्लियर? और उस वक्त मजबूर हुए थे लोग जंगली जानवरों को खाने के, एंड तभी से चाइना में वेट मार्केट स्टार्ट है। नाउ सेकंड इज ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन। उसी माओ ने, देखो ग्रेट लीप फॉरवर्ड 1956 में हुआ था, उसी माओ ने 1964 में, ये माओ बहुत बड़ा लीडर था चाइना का, उसने ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ। अब ये क्या होता है, इसमें बहुत विदेशों के सारे स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल को बुलाया गया चाइना में कि आइए और हमारे कल्चर को सीखिए और उसे दुनिया भर में फैलाइए। तो स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल वे सेंड बैक एंड लर्न फ्रॉम द कंट्री साइड, मतलब दुनिया भर के स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल को चाइना ने अपने कंट्री में वेलकम किया और बोला कि हमारे कल्चर को दुनिया में फैलाइए। लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम तब आया व्हेन देयर इज़ ए कन्फ्लिक्ट स्टार्ट बिटवीन रशिया एंड चाइना, जिसके वजह से रशिया ने अपने सारे प्रोफेशनल वापस बुला लिए और धीरे धीरे
ये रिवॉल्यूशन भी ख़त्म हो गया। नाउ कम टू थर्ड पॉइंट। द नेम ऑफ द पॉइंट इज रिफॉर्म अंडर चाइना। चाइना में रिफॉर्म कब हुआ? जैसे इंडिया में रिफॉर्म कब हुआ था 1951 में, उसी तरह चाइना में रिफॉर्म कब हुआ था 1978 में। यू हैव टू रिमेंबर दिस। और रिफॉर्म 2 स्टेज में हुआ। पहले शुरुआत में इनिशियल स्टेज में क्या हुआ? इनिशियल स्टेज में आपको याद है 1956 में जब ग्रेट लीप फॉरवर्ड चल रहा था, उसी वक्त चाइना की सरकार ने सभी किसानों को बोला था कम्यून सिस्टम के लिए, कलेक्टिवली फार्मिंग के लिए। लेकिन रिफॉर्म के दौरान उसी कम्यून लैंड को डिवाइड कर दिया गया स्मॉल प्लॉट्स में, यानी उल्टा। कम्यून लैंड में डिवाइड इनटू स्मॉल प्लॉट्स एंड ओनली फॉर यूज नॉट एज ओनरशिप गिवन टू इंडिविजुअल हाउस होल्ड। मतलब किसानों को वो यूज करने के लिए खेत दे दिया गया, मालिक नहीं बनाया, ओनर नहीं, बस यूज करने के लिए। और किसानों को ये बोला गया कि जो भी इनकम आपका होता है, वट एवर इनकम यू कैन अर्न फ्रॉम दैट फील्ड, यू विल कीप इट विथ योर सेल्फ, यू जस्ट हैव टू पे ए स्टिपुलेटेड टैक्स। मतलब पहले इकट्ठा खेती करता था, अब किसी की सरकार ने ये कहा कि नहीं, खेतों को डिवाइड करके इंडिविजुअली सबको खेत दे दिएगा, मालिक सरकार ही रहेगा, सरकार सिर्फ टैक्स लेगा, वॉट एवर इनकम इज़ अर्न वो किसान अपने पास रखेगा। ये इनिशियल फेज़ में हुआ। लेटर फेज़ में क्या हुआ? सरकार ने प्राइवेट कंपनियों को मौका दिया, प्राइवेट सेक्टर को मौका दिया, छोटे शहरों में, गांव में लोगों को प्रेरित किया ताकि वो लोग भी छोटे छोटे प्राइवेट सेक्टर खोल सके। इससे क्या हुआ? जो सरकारी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज था, मतलब सरकारी कंपनी था, उसको कंपटीशन मिला। इससे सरकारों का भी, सरकारी कंपनियों का भी क्वालिटी क्या हुआ? अच्छा हुआ। क्लियर? अप टू हियर आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। नाउ रिफॉर्म के दौरान एक और चीज़ हुआ जिसे कहते हैं डुअल प्राइसिंग ड्यूरिंग रिफॉर्म प्रोसेस। रिफॉर्म के दौरान ही ये हुआ था। इसमें क्या हुआ था? इसमें सरकार ने पूरे चाइना में डुअल प्राइसिंग सिस्टम चला दिया था। डुअल प्राइसिंग मतलब फार्मर और इंडस्ट्री, रिमेंबर, किसान और इंडस्ट्री क्या बनाएगा, कितना आउटपुट करेगा और क्या चीज़ खेती करेगा और इंडस्ट्री में क्या बनेगा, ये सारा कौन डिसाइड करता था? आर फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट। और उसका कीमत क्या होगा? वो 2000 फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट। यानी इंडस्ट्री में क्या बनेगा, उसका क्या कीमत होगा, ये सारा कौन फिक्स करता था? गवर्नमेंट। और किसान क्या खेती करेगा और कितना करेगा और उसका कीमत क्या, ये भी कौन फिक्स करता था? गवर्नमेंट। लेकिन बाकी जो चीज़ मार्केट में मिलता था उन सब का कीमत कौन तय करता था? मार्केट। उसका कीमत गवर्नमेंट तय नहीं करता था। किसान और इंडस्ट्री में ही सारे चीज़ का डिसीजन गवर्नमेंट लेता था, बाकी सब चीज़ मार्केट में फ्री प्ले में चलता था। फ्री प्ले मीन्स थ्रू द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। इसे कहते हैं डुअल प्रोसीजर। डुअल प्राइसिंग मीन्स एक तरफ इंडस्ट्री और किसानों के लिए गवर्नमेंट सब कुछ फिक्स करा, बाकी चीज़ों को मार्केट पे छोड़ दिया। डुअल प्राइसिंग। स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया गया जगह जगह में। स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्यों बनाया जाता है? सिर्फ और सिर्फ टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर। ये होता क्या है? चाइना में जो बैकवर्ड एरिया था, द बैकवर्ड एरिया इन चाइना मोस्टली इन द कोस्टल रीजन, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया ताकि फॉरेन, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के बाद थोड़ा लिबरल पॉलिसी रखा गया कि फॉरेन इन्वेस्टर, अगर फॉरेन कंपनी यहाँ पैसा लगाता है तो बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन में, लाइसेंस में, गवर्नमेंट परमिशन में बहुत ज़्यादा छूट मिलेगा। ठीक है, लिबरल पॉलिसी रखा गया वहाँ पर कि यहाँ पर अगर आप इंडस्ट्री खोलते हैं तो आपको बहुत टैक्स में और बहुत चीज़ों में आपको छूट मिलेगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर इंडस्ट्री जा सके, ना कि दूसरे जगह पर। ऐसे बैकवर्ड एरिया में स्पेशल इकोनॉमिक जोन खोला गया ताकि फॉरेन इंडस्ट्री वहाँ पर आए और वहाँ के लोगों को रोजगार दे और वहाँ पर डेवलपमेंट आ सके। आई होप यू अंडरस्टूड। नाउ कम टू द नेक्स्ट, पाकिस्तान। पाकिस्तान का मेन नाम क्या है? इट्स ऑफिशियल नेम इज, जैसे चाइना का है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ऐसे पाकिस्तान का ऑफिशियल नेम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ था और ये 2 हिस्से में था। वन इज़ कॉल्ड वेस्ट पाकिस्तान और अनदर इज़ कॉल्ड ईस्ट पाकिस्तान। जो 1971 में सिविल वार, घरेलू युद्ध होने के बाद ये ईस्ट पाकिस्तान अलग हो गया और एक इंडिपेंडेंस देश बन गया जिसे हम कहते हैं बांग्लादेश। क्लियर? यानी बांग्लादेश 1971 तक ईस्ट पाकिस्तान कहलाता था। क्लियर? नाउ पाकिस्तान के बारे में जानते हैं। पाकिस्तान कहाँ है? साउथ ईस्ट एशिया में। ठीक है, इनके नेबरिंग कंट्री ये है, आपको पढ़ना है। ठीक है, पाकिस्तान के बारे में 6th पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, आबादी में 6ठा सबसे बड़ा देश है। नेक्स्ट, पाकिस्तान में जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो 2.1% है एज़ पर 2015। यू हैव टू रिमेंबर दिस। चाइना में 2015 में कितना था? 0.5%। इतना कम क्यों? हालांकि वहाँ पे दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी है, ड्यू टू वन चाइल्ड पॉलिसी। ठीक है, 1/3 ऑफ पॉपुलेशन बिलो द पॉवर्टी लाइन। दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर। क्यों चाइना का पाकिस्तान का इकोनॉमी इतना डाउन है? क्योंकि यहाँ पर 1/3 ऑफ द टोटल, यानी मान लो
30 आदमी रहते हैं पाकिस्तान में, तो 10 आदमी वहाँ पर गरीबी रेखा से नीचे है। इट्स सेकेंड मोस्ट पॉपुलस मुस्लिम कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर इंडोनेशिया। और यहाँ पर लैंग्वेज है मोस्टली यूज्ड इज़ उर्दू एंड ऑफिशियल लैंग्वेज इज़ इंग्लिश। क्लियर? नाउ वी विल स्टडी द इकोनॉमी ऑफ चाइना, सॉरी पाकिस्तान। Pakistan, as like India, Pakistan follow mixed economy. Mixed economy means both public sector and private sector. Various policies has been introduced by Pakistan government at that time. Mostly मैन्युफैक्चरिंग कंज्यूमर गुड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे टैरिफ पॉलिसी बनाया गया। टैरिफ पॉलिसी मीन्स इम्पोर्ट जो विदेश से गुड्स आ रहा है उस पर बहुत ज़्यादा हैवी ड्यूटी रखा गया ताकि डोमेस्टिक इंडस्ट्री प्रोटेक्ट, कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री जो घर का है वो प्रोटेक्ट हो सके। इसके लिए बहुत सारे पॉलिसी बनाए गए। ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया गया चाइना में, जिसकी वजह से फूड ग्रेन में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन में राइज हुआ। इससे एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ। ठीक है, 1970s में क्या होता है? 1970s में सरकार बहुत सारे कैपिटल गुड इंडस्ट्री मीन्स कैपिटल गुड इंडस्ट्री को नेशनलाइज किया 1970s में। नेशनलाइज मतलब सरकार अपने अंदर टेक ओवर कर लिया। कैपिटल गुड इंडस्ट्री मतलब दोज इंडस्ट्री विच प्रोड्यूस मशीन्स, जो मशीन बनाता है जैसे कि ट्रैक्टर, मोटर, ये सब इंडस्ट्री सरकार ने नेशनलाइज कर लिया। लेकिन ये कब किया था? अर्ली 1970s में। लेट 1970s में फिर इसे डी नेशनलाइज किया गया और प्राइवेट को मौका दिया कि और आए। ठीक है, प्राइवेट के लिए नया एक इन्वायरमेंट दे दिया कि आप लोग आइए और इन्वेस्टमेंट कीजिए ना। पाकिस्तान को मोस्टली फाइनेंशियल सपोर्ट कहाँ से मिलता है? वेस्टर्न नेशन से, अमेरिका हो गया, IMF हो गया, ये लोग बहुत ज़्यादा हेल्प करता है पाकिस्तान को। और दूसरा रेमिटेंस फ्रॉम इमिग्रेंट ऑफ द मिडिल ईस्ट, मतलब रेमिटेंस जो पाकिस्तान के बहुत सारे रेमिटेंस है जो मिडिल ईस्ट अरब देशों में काम करते हैं, मिडिल ईस्ट कंट्री में काम करते हैं, वो लोग वहाँ से जो फॉरेन रिजर्व भेजते हैं, फॉरेन करेंसी भेजते हैं, उनसे भी फाइनेंशियली हेल्प मिलता है। तो मोस्टली पाकिस्तान को फाइनेंशियल हेल्प कहाँ से मिलता है? या तो वेस्टर्न कंट्रीज़ से या फिर जो उनके लोग मिडिल ईस्ट में रह रहे। और चाइना पाकिस्तान में रिफॉर्म कब हुआ था? 1988 में। आई होप यहाँ तक सबका क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द कंपेरेटिव स्टडी। टिल नाउ वी हैव अंडरस्टैंड द जियोग्राफिकल कंडीशन where it is located, or what is the population. Now we will study the economic condition one by one. If you understand this schedule, this table, then you can understand everything because this table is explained below. Okay, we will go one by one. See this table properly. This table shows demographic indicator. Demographic indicator means population, annual growth of population, density, sex ratio, fertility rate and urbanization. Estimated population 2015 तक इंडिया का पॉपुलेशन 1311 मिलियन था, चाइना 1371 एंड पाकिस्तान हैज़ ओनली 188 मिलियन। जबकि और चाइना में इतना ज़्यादा क्यों है? क्योंकि एरिया के हिसाब से देखा जाए तो चाइना थर्ड लार्जेस्ट है एरिया में, इस वजह से भी ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट एंड पॉपुलेशन है पाकिस्तान 6th लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री है। एनुअल ग्रोथ देखा जाए तो चाइना चूँकि वर्ल्ड में लार्जेस्ट है बट इट्स एनुअल ग्रोथ पॉपुलेशन इज़ वेरी कम, वेरी लो 0.5। और इसका कारण है सिर्फ वन चाइल्ड पॉलिसी जो लिया गया था, वो हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद ग्रोथ रेट किस में है पॉपुलेशन का ज़्यादा? इंडिया सबसे ज़्यादा कहाँ है ग्रोथ रेट पॉपुलेशन का? पाकिस्तान में। नेक्स्ट डेंसिटी, चूँकि पाकिस्तान और इंडिया में ग्रोथ रेट ज़्यादा है। पाकिस्तान और इंडिया में ग्रोथ रेट क्या है? बहुत ज़्यादा है, जिसके वजह से यहाँ डेंसिटी भी ज़्यादा है। डेंसिटी का मतलब होता है 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। तो चाइना में 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने रहते हैं? 146 ओनली, और पाकिस्तान में 245। लेकिन इंडिया में देखो बहुत ज़्यादा, यहाँ डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, यानी 1 स्क्वायर किलोमीटर में लोग ज़्यादा रहते हैं। चाइना में कम क्यों है? चाइना के पास एरिया भी बहुत बड़ा है, इट थर्ड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, और हम लोग 7th आते हैं। क्लियर? अब सेक्स रेशियो बता दें कि 1000 मेल में कितने फीमेल है। तो इंडिया में 929, पाकिस्तान में, चाइना में 941 एंड पाकिस्तान में 947। तीनों में ही सेक्स रेशियो बहुत कम है, क्योंकि तीनों ही देश मोस्टली किसको प्रेफर करते हैं? सन को प्रेफर करते हैं, बॉय मेल को प्रेफर करते हैं, लड़का
को प्रीफर करते हैं, लड़की को नहीं करने की वजह से यहाँ पर भ्रूण हत्या ज़्यादा होता है लड़कियों का, जिसके वजह से सेक्स रेशियो तीनों देश में कम है ना। फर्टिलिटी रेट, फर्टिलिटी मतलब एक माँ कितने बच्चों को जन्म देती है, तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ है, पाकिस्तान में है। एक एवरेज वुमेन 3.7 बर्थ देती है, जबकि इंडिया में 2.3 है, और पाकिस्तान में चाइना में सबसे कम 1.6। और ये कम क्यों है, इसका फिर वही रीज़न है, ड्यू टू वन चाइल्ड पॉलिसी। और चाइना में कम क्यों है, चाइना में कम इसलिए है क्योंकि यहाँ पर वन चाइल्ड पॉलिसी हुआ था। और पाकिस्तान में इतना ज़्यादा क्यों है, और इसी पाकिस्तान में मोर्टेलिटी, एक महिला के ज़्यादा बच्चे जन्म देने की वजह से यहाँ पर डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है। और अगर शहर का बात करें तो सबसे ज़्यादा शहर कहाँ है, सबसे ज़्यादा शहर है, अर्बनाइजेशन का बात करें तो सबसे ज़्यादा शहर कहाँ पे देखने में, चाइना में 56, देन पाकिस्तान, और उसके बाद इंडिया में 33। यही चीज़ नीचे यू विल गेट द एक्सप्लेनेशन। सी, चाइना इज़ द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, इतना। उसके बाद इंडिया सेकंड मोस्ट पॉपुलस, एंड नेक्स्ट इज़ पाकिस्तान 188 मिलियन पे। ठीक है, देखो क्या लिखा, अगर हम वर्ल्ड का पॉपुलेशन ले, इफ़ यू टेक होल वर्ल्ड पॉपुलेशन, तो एवरी 6 पर्सन लिविंग इन, आउट ऑफ एवरी 6 पर्सन लिविंग इन द वर्ल्ड, वन इज़ इंडियन एंड अनदर इज़ चाइनीज़। और पाकिस्तान का इस हिसाब से पॉपुलेशन बहुत कम होने की वजह से इंडिया और चाइना का 1/10 पॉपुलेशन पाकिस्तान में, मीन्स अगर इंडिया में 100 लोग रहते हैं तो पाकिस्तान में कितने हैं, 1/10, मतलब 10 ही लोग। और पूरे दुनिया में 6 आदमी है, तो उसमें हर एक आदमी चाइनीज़ और एक आदमी इंडियन है। ओके, नाउ नेक्स्ट, इंडिया पढ़े थे, चाइना में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कितना है एनुअली, 0.5%। इंडिया में ज़्यादा है, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। तो चाइना में इतना कम क्यों है, ड्यू टू वन चाइल्ड पॉलिसी। अब इसी को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। वन चाइल्ड पॉलिसी वॉज सक्सेसफुल, रिड्यूस द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, प्रोवाइड बेटर हेल्थ सर्विस फॉर वुमेन एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ डेथ इंजरी एसोसिएटेड विद प्रेगनेंसी। यानी वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से ग्रोथ रेट, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट एक तो डिक्रीज़ हुआ, एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड बेटर हेल्थ ऑन द वुमेन। हाउ, ड्यू टू रिस्क ऑफ डेथ जो होता था ड्यू टू प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी की वजह से जो डेथ होने का खतरा तो वो कम हो गया, जिसके वजह से महिलाएं कम मरने लगी। लेकिन इस पॉलिसी का एक नुकसान था, वन इम्प्लीकेशन ऑल्सो, क्या था, कुछ ही सालों में मोर एल्डरली पीपल हो गए, मतलब बूढ़े लोग ज़्यादा हो गए, और वर्किंग यंग पीपल क्या हो गए, कम। इसीलिए सरकार को क्या करना पड़ा, सोशल सिक्योरिटी स्कीम देना पड़ा फ्यूअर वर्कर को। फ्यूअर वर्कर को क्यों ज़्यादा देना पड़ा था, क्योंकि उनके घर में बूढ़े लोग ज़्यादा थे। तो वर्किंग पॉपुलेशन कम हो गया और डिपेंडेंट पॉपुलेशन मतलब बूढ़े लोग ज़्यादा हो गए, तो सरकार को उस फ्यू वर्कर को सोशल सिक्योरिटी, सैलरी के ऊपर जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम है, पेंशन वगैरह, ये ज़्यादा देना पड़ रहा था। क्लियर, इसीलिए इस पॉलिसी को हटा दिया गया। लेकिन वन चाइल्ड पॉलिसी का बहुत अच्छा इम्पैक्ट ये था कि वन चाइल्ड पॉलिसी में पूरा का पूरा चाइना का आबादी आधा तक पहुंच गया था ऑलमोस्ट। कैसे, अगर 3 परिवार है, हस्बैंड वाइफ हस्बैंड वाइफ हस्बैंड है, 6 आदमी, और तीनों का एक एक बच्चा होता है, तो 6 आदमी का कितने बच्चे हो गए, 3, नियरली 50% पॉपुलेशन कम हो जाता था। दैट्स वाई इट्स वेरी मच सक्सेसफुल इन चाइना, इसीलिए पॉपुलेशन ग्रोथ 0.5 पे आ गया। डेंसिटी की बात करें तो 1 किलोमीटर में सबसे ज़्यादा कहाँ रह रहा है, आप ये देख लिए, चाइना में सबसे कम है, इंडिया में सबसे ज़्यादा है, चाइना में सबसे कम है, और पाकिस्तान में सेकंड। ठीक है, सेक्स रेशियो का बात करें, क्यों, क्योंकि हम लोग मोस्टली किसको प्रेफर करते हैं, प्रेफरेंस ऑफ सन इसे कहते हैं, जिसकी वजह से सेक्स रेशियो कम होने बायस्ड, क्योंकि हम लोग फीमेल को मार देते हैं, लड़की के भ्रूण हत्या कर देते हैं। लड़की सुनते ही कि लड़की अगर जन्म हो रहा है तो उसे मार दिया जाता है, क्योंकि बच्चों। फर्टिलिटी की बात करें तो महिलाएं, सबसे ज़्यादा महिलाएं कहाँ पे जन्म दे रहा है, पाकिस्तान में, और उसके बाद इंडिया में, और सबसे कम कहाँ है, चाइना में 1.6। ठीक है, पहले ज़्यादा था, लेकिन वन चाइल्ड की वजह से इसे कम हुआ, 3 था पहले, 3 था, उसको 1.6 हो गया ड्यू टू वन चाइल्ड पॉलिसी। नेक्स्ट इज़ अर्बनाइजेशन, शहर सबसे ज़्यादा कहाँ है, चाइना में है, उसके बाद पाकिस्तान में, एंड देन इंडिया में। अब आ जाओ ग्रोथ इंडिकेटर का बात करें। ग्रोथ इंडिकेटर को अगर हम देखें तो इस ग्राफ को ही देख लो, समझ में आ जाएगा। इंडिया में 1980 1990 मतलब 1991 में इंडिया में एलपीजी आया था। देखो 19 जब एलपीजी तक कितना था, मतलब रिफॉर्म से पहले कितना था, 5.6। आफ्टर रिफॉर्म इट्स ग्रोथ हैज़ इंक्रीज्ड, गुड।
चाइना में डबल डिजिट का ग्रोथ था। हम लोग पढ़ रहे हैं एनुअल ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ, डबल डिजिट का ग्रोथ था, बट चाइना में ये ग्रोथ क्या हो गया, कम हुआ। और पाकिस्तान में भी ग्रोथ क्या हुआ, कम हुआ। इंडिया में ग्रोथ बढ़ा क्यों, ड्यू टू रिफॉर्म, रिफॉर्म होने की वजह से, एलपीजी आने की वजह से ग्रोथ हुआ। चाइना में ग्रोथ घटा क्यों, इसका एक कारण कहते हैं लोग कि चूंकि वर्किंग पॉपुलेशन कम हो गया था, जिसकी वजह से ग्रोथ घटने का कारण ये है। और पाकिस्तान में ग्रोथ क्यों डिक्रीज़ हुआ, जीडीपी, एनुअल जीडीपी क्यों डिक्रीज़ हुआ, इसके कारण आप नीचे देख सकते हैं यहाँ। इसका कारण दो था। एक तो रिफॉर्म जो पाकिस्तान में 1988 में जो रिफॉर्म आया था पाकिस्तान में, वो पॉजिटिव नहीं था, बल्कि पाकिस्तान इकोनॉमी के लिए नेगेटिव रहा। जैसे इंडिया में 1991 में उसका पॉजिटिव होकर इंडिया में ग्रोथ हुआ, बट चाइना में जो रिफॉर्म है वो उसको ग्रोथ को नेगेटिव ले गया। और दूसरा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, लगातार वहाँ पर पॉलिटिकली इंस्टेबल, कभी मिलिट्री राज करता था, कभी कोई सत्या पलट ज़्यादा होता। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से कोई स्टेबल इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं बन पा रहा था। नाउ कम टू द नेक्स्ट। ओके, नाउ वी विल डिस्कस सेक्टोरियल कंट्रीब्यूशन, बट बिफोर दैट देयर इज़ वन बॉक्स, इट इज़ रिटन परचेजिंग पावर पैरिटी। लेट मी एक्सप्लेन। परचेजिंग पावर पैरिटी में इंडिया का नंबर, देखो जीडीपी तीन तरह से मेजर कर सकते हैं, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी एंड पीपीपी जीडीपी। रियल जीडीपी मतलब जब हम प्राइस को कांस्टेंट रखते हैं, सिर्फ क्वांटिटी को मेजर करते हैं, प्राइस किसी बेस ईयर का लेते हैं। नॉमिनल जीडीपी में प्राइस करंट ईयर का लेंगे। और परचेजिंग पावर पैरिटी जो यहाँ पे बताया गया, इसमें क्या करते हैं, एक करेंसी को इंडिया में $1 में कितना खरीद पाएंगे, क्या क्या चीज़ें खरीद पाएंगे, और डॉलर से अमेरिका में कितना $1 में खरीद पाएंगे। अगर मान लो अमेरिका में $1 में कुछ चीज़ें खरीदते हैं और वही $1 लाके इंडिया में खरीदे, यानी इंडिया में कितने रुपए खरीद, ₹70 खरीद पाएंगे, तो कौन ज़्यादा खरीद सकता है, इसे कहते हैं। यानी एक ही कॉमन डॉलर से हर एक देश में कितना खरीद सकते हैं। तो डॉलर से अगर इंडिया में खरीदना है तो कितना में खरीदना पड़ेगा, ₹70 में, क्योंकि डॉलर इक्वल टू ₹70। तो इस हिसाब से इंडिया का परचेजिंग पावर कितना है, थर्ड पे आता है, यानी इंडिया के करेंसी का परचेजिंग पावर ज़्यादा है। अच्छा, अब आते हैं सेक्टोरियल, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस। ध्यान से देखेंगे इसको। पहले चाइना का बात करते हैं। टोपोग्राफिक कंडीशन, चाइना में कंडीशन अच्छा होने के वजह से, क्योंकि ये ट्रॉपिकल रीजन में है, जिसके वजह से यहाँ पर खेती बहुत अच्छा है। जस्ट 10% ड्यू टू, नहीं, यहाँ पर खेती सही नहीं हो पाता, ओनली 10% ऑफ द टोटल कल्टिवेटेड लैंड। सोच के देखो, यहाँ पर खेती, जितना लैंड है चाइना के पास, मान लो 100 एकड़ जमीन है, 10 एकड़ में ही खेती कर सकता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग को याद रखना है कि चाइना में 40% ऑफ कल्टिवेबल लैंड है इंडिया के कंपेरिजन में। मीन्स अगर इंडिया के पास 100 एकड़ है तो चाइना के पास इंडिया के कंपेरिजन में कितने खेती के लैंड है, 40% ओनली। माने वॉट एवर परसेंटेज ऑफ कल्टिवेबल लैंड इंडिया हैज़, इट है चाइना हैज़ ओनली 40% ऑफ इट। ओके, नाउ सी द ग्राफ। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में जीडीपी पर, यानी गुड्स सबसे ज़्यादा देश को कमा के कौन दे रहा है, तो अगर बात करें एग्रीकल्चर, इंडिया दे रहा है 17, चाइना सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन, सबसे कम कंट्रीब्यूशन है चाइना का जीडीपी में एग्रीकल्चर का, फिर 25। इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कहाँ है, चाइना में, यानी जीडीपी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कहाँ कर रहा है, चाइना में। इंडस्ट्रियल सेक्टर का मतलब चाइना में सबसे ज़्यादा लोग कहाँ पर रोजगार कर रहे हैं, कहाँ से इनकम कमा रहे हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर से। और सर्विस सेक्टर से सबसे ज़्यादा कहाँ, ये बहुत बड़ा जानने की बात है, पाकिस्तान में। यानी पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सर्विस सेक्टर, याद रखना। ये तीनों देश, ऑल दिस 3 कंट्री, सभी एग्रीकल्चर से, पहले एग्रीकल्चर सेक्टर से सिस्टम होता है इंडस्ट्री सेक्टर में और फिर सर्विस सेक्टर में। बट इंडिया और पाकिस्तान ने डायरेक्ट जंप किया था एग्रीकल्चर से कहाँ, सर्विस सेक्टर में, यानी यहाँ पर कोई इंडस्ट्रियल ग्रोथ डेवलपमेंट नहीं हुआ था। लेकिन चाइना में आप देखेंगे तो चाइना में लोग एग्रीकल्चर से किधर आए थे, इंडस्ट्री की तरफ। याद है ग्रेट लीप कैंपेन वो चला था, जो जहाँ पर एग्रीकल्चर इकोनॉमी को मॉडर्न इकोनॉमी करने के लिए इंडस्ट्रियल किया जाए, तो वहाँ पे इंडस्ट्री को ज़्यादा फोकस किया गया था। इंडस्ट्री के बाद सर्विस सेक्टर पे है, लेकिन हम लोग डायरेक्ट कहाँ आए थे, सर्विस। पाकिस्तान में भी यही हुआ कि डायरेक्ट एग्रीकल्चर से सर्विस सेक्टर में आने की वजह से यहाँ सर्विस सेक्टर में ज़्यादा लोग काम करते हैं, उनका जीडीपी कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। क्लियर, आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन कितना लोग कहाँ पर काम करते हैं। ये सेम चीज़ यहाँ पर डिस्कस किया गया जो मैंने कहा आपको, कोई चीज़ इसमें नया नहीं है। आप इसको जब पढ़ेंगे तो आपको वही दिखेगा जो वहाँ पे लिखा हुआ है। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि एग्रीकल्चर, देखो चाइना हैज़ शिफ्टेड एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट फ्रॉम एग्रीकल्चर टू मैन्युफैक्चरिंग, जबकि इंडिया हैज़ शिफ्टेड डायरेक्टली टू सर्विस। हम लोग डायरेक्टली कहाँ पहुँच गए थे, सर्विस सेक्टर में। आप देख सकते हैं
कि यहाँ पर एक चीज़ लिखा है, पाकिस्तान है वाज द फास्टर इन शिफ्टिंग द वर्कफोर्स इन एक सर्विस सेक्टर। सबसे तेज़ी में कौन शिफ्ट किया था एग्रीकल्चर से सर्विस सेक्टर में? पाकिस्तान। ठीक है, तो ये यही चीज़ लिखा हुआ है, इन सबको चीज़ों को पढ़ोगे। अब आ जाओ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ये बहुत ज़रूरी है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में एक्चुअली 3 इंडिकेटर देखा जाता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मीन ऑफ स्कूलिंग एंड पर कैपिटा, बट और भी लिया गया है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में पहले बता दें, एसडीआई रैंक में इंडिया इज हैविंग 131 रैंक, पाकिस्तान 91 एंड पाकिस्तान 148 एंड चाइना 91। जिनका रैंक कम 91 है वो सबसे अच्छा है। नंबर 1 पे तो नॉर्वे है, सबसे अच्छा रैंक। उसके बाद अगर इन तीनों में कंपैरिजन करें तो चाइना हैज़ गुड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, आफ्टर देन इंडिया, देन पाकिस्तान। वाई? बिकॉज बाकी सारे जो भी डायमेंशंस यहाँ पे दिए गए वो सारे में देखना चाइना अच्छा होने की वजह से उसका एसडीआई अच्छा रैंक में है। फॉर एग्जांपल लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एवरेज लोग कहाँ पर जीते हैं सबसे ज़्यादा? तो देखो सबसे ज़्यादा लोग कहाँ पर जी रहे हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है एवरेज ईयर लाइफ ऑफ पीपल, तो सबसे ज़्यादा कहाँ है? 76 चाइना में, फिर 68 इंडिया में, फिर 66 पाकिस्तान। एवरेज लाइफ दिखाता है गुड हेल्थ, हेल्थ फैसिलिटी, हेल्थ केयर फैसिलिटी, मेडिसिन, ये सारे चीज़ें। स्कूलिंग का परसेंटेज, 15 साल के ऊपर बच्चे कहाँ सबसे ज़्यादा स्कूलिंग करते हैं? तो चाइना में, फिर ये और फिर ये। स्कूलिंग ज़्यादा होगा तो एजुकेशन ज़्यादा होगा, एजुकेशन ज़्यादा होगा तो स्ट्रॉन्ग ह्यूमन रिसोर्स बनेगा, स्किल लेबर फोर्स बनेगा। ये कहाँ देखने को मिले सबसे ज़्यादा स्किल लेबर फोर्स? चाइना में। जीडीपी अगर पर कैपिटा के हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा कहाँ है? चाइना में, $14,400, देन इंडिया एंड देन पाकिस्तान। इस हिसाब से बच्चे जो 1 साल के नीचे मर जाते हैं, 1 साल के कम आयु में जो बच्चे मरते हैं वो मरते हैं ड्यू टू अनहाइजेनिक कंडीशन, साफ़ सफाई नहीं होने की वजह से और माँ बाप के मेल न्यूट्रिशन की वजह से, मतलब उन लोगों के कुपोषण के, माँ बाप को खाना नहीं मिलने की वजह। इस हिसाब से पाकिस्तान सबसे अच्छा है क्योंकि यहाँ कम मरते हैं, 1000 में 9, और फिर इंडिया सबसे ज़्यादा कहाँ मरते हैं। और इसका कारण है इन्फेंट मोर्टेलिटी मरने का एक ही कारण है, अनहाइजेनिक, अनसैनिटरी, मतलब साफ़ सफाई नहीं होने की वजह और पेरेंट्स की मेल न्यूट्रिशन की वजह से। नेक्स्ट आता है महिलाएं कहाँ ज़्यादा मरती है। मैटरनल मोर्टेलिटी मतलब प्रेग्नेंट महिलाएं या फिर महिलाएं मोर्टेलिटी कहाँ मरते हैं? सबसे ज़्यादा कहाँ मरते हैं? पाकिस्तान में, देन इंडिया एंड देन चाइना में। सिर्फ 27 महिलाएं मरती है। तुम्हें पता ही है क्यों? क्योंकि वहाँ पर 1 चाइल्ड पॉलिसी होने की वजह से वो जो रिस्क ऑफ डेथ था प्रेग्नेंट वुमेन का वो कम हो गया था। उसके बाद इम्प्रूव सैनिटाइजेशन, साफ़ सफाई सबसे ज़्यादा कहाँ है? सबसे ज़्यादा चाइना में है, फिर पाकिस्तान में। साफ़ सफाई के हिसाब से इंडिया पीछे है। इम्प्रूव्ड वाटर सोर्स, इम्प्रूव्ड वाटर सोर्स मैं बता दूं इसका मतलब क्या होता है। इम्प्रूव्ड वाटर सोर्स का मतलब होता है, वेट, इम्प्रूव्ड वाटर सोर्स का मतलब होता है, बाकी सारा यही वही चीज़ लिखा हुआ है जो मैं वहाँ पे बता रहा हूँ। इम्प्रूव्ड वाटर सोर्स का मतलब होता है तकरीबन 20 लीटर पानी हर किसी को मिलना चाहिए पर डे, 20 लीटर। इस हिसाब से चाइना सबसे आगे है, उसके बाद पाकिस्तान है, चाइना सबसे आगे है 20 लीटर पानी सबको प्रोवाइड कर रहा है, उसके बाद इंडिया है एंड लास्ट इज पाकिस्तान। क्लियर? ना नेक्स्ट, अननॉरिश्ड बच्चे। अननॉरिश्ड मतलब जिनको, वो बच्चे जिन्हें प्रॉपर डाइट नहीं मिल पाता, ऐसे बच्चे सबसे ज़्यादा देखने को कहाँ मिलेगा? Pakistan, then India, and last is China. So what we can see, what all the graph, demographic indicator we can say, annual GDP growth we can say, sectorial growth means agriculture, industry, service sector we can say, and SDI. In all these condition, what we are saying that China is growing. China is much better than these two neighboring countries, that is India and Pakistan. That's why China economic condition is much strong. Clear? These are the indicators which make a country economically developed or strong. Understood? So, and we come to the last point, that is what is liberty indicator. Liberty indicator किसे कहते हैं? देखो सिर्फ HDI यहाँ पढ़ेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर नॉट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बट नॉट सफिशिएंट। इंपॉर्टेंट तो है जो PPT, नॉरिशमेंट, इन्फेंट मोर्टेलिटी सब, बट ये सफिशिएंट नहीं है। इसके साथ हमें देखना पड़ेगा लिबर्टी इंडिकेटर, जिसमें चाइना बहुत पीछे है। ये लिबर्टी इंडिकेटर क्या होता है सर? तो ये समझेंगे हम लोग। लिबर्टी इंडिकेटर का मतलब होता है फ्रीडम। चाइना में आज़ादी नहीं है। लिबर्टी इंडिकेटर मीन्स
एक्सटेंड और डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन सोशल एंड पॉलिटिकल डिसीजन, मतलब सामाजिक और राजनीतिक में जनता का कितना रोल है, पब्लिक कितना इनमें डिसीजन ले सकता है। एज यू ऑल नो दैट चाइना में कोई डिसीजन लेने, ऑल द डिसीजन आर टेकन बाय द गवर्नमेंट, पब्लिक का वहाँ कोई रोल नहीं है। तो वहाँ पर लिबर्टी इंडिकेटर में देखा है तो चाइना बहुत पीछे है। जैसे कि एग्जाम्पल दे, एक्सटेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी एंड लॉ, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में सेट टू बी इनकम्प्लीट अनलेस ये इंडिकेटर नहीं लेने से, जब तक ना लें ह्यूमन डेवलपमेंट को कंप्लीट नहीं माना जाएगा। तो ये क्या कहता है, मेजर क्या क्या इसमें एग्जांपल था लिबर्टी इंडिकेटर, मेजर टू एक्सटेंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन राइट एंड गिवन टू सिटीजन, यानी कितने संविधान में कितने आज़ादी जनता को दिया गया है। जैसे हम लोग सभी जानते हैं चाइना में फ्रीडम टू स्पीच नहीं है, कोई बोल नहीं सकता वहाँ पे अपने मर्जी से, नहीं तो सरकार उसे कैद कर लेगा, अरेस्ट कर लेगा। तो वहाँ फ्रीडम उतना राइट्स नहीं मिला है, कॉन्स्टिट्यूशन में उतना राइट अलाउ नहीं है, यानी वहाँ पर उतना लिबर्टी नहीं है। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी एंड रूल ऑफ लॉ, वहाँ पर कानून में ऐसा कोई प्रोटेक्शन पब्लिक के लिए नहीं है, सरकार जब भी चाहे पब्लिक को किसी भी कारण से अरेस्ट करवा सकता है। तो इन सच कंडीशन व्हाट वी कैन से कि चाइना बहुत पीछे है लिबर्टी में, लिबर्टी इंडिकेटर में। सो इसके बिना SDI इनकम्प्लीटेड, बट many country still now many country are not using this as a indicator of SDI. So we can say in that case China is still strong after than India, and then last is Pakistan. Hope you all have understood this chapter. You will go through it and it's very interesting. Thank you.